I wish a very good morning to all the people present here. This morning, we are here for a webinar on topic HIV/AIDS awareness on the World's AIDS Day. The attendees present here are the volunteers of NSS and Socio-Eco Club of Medicaps University. We have Dr. Madhvika Patidar between us as a speaker for today's webinar. She is Assistant Professor of Department of Oral Pathology and Microbiology. She is also a Nodal Officer at FICTC for presented research papers in many national and international conferences and got many awards in various categories like paper presentation, poster presentation, radiographic presentation, etc. There have been 17 publications in various national and international journals. She also organized many HIV awareness programs and worked in COVID from April 2020 to May 2021. Respected ma'am completed their studies from Government College of Dentistry, Indore. Now, I would like to request ma'am to please take over and start the webinar. Okay, sorry to interrupt. We also welcome our team from District Heads Prevention and Control Unit, Mayank Agrawal sir, Alok Ranjan sir, and Disha ma'am. We also welcome them with the other volunteers. Thank you. Ma'am, please proceed. Am I audible to everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am, you are audible. Okay, and can you all see my screen? Yes. Okay. Can you all see my screen properly? And am I audible now? Yes, ma'am, you are clearly audible and your screen is also visible. Okay, thank you. Thank you. A warm good morning to one and all. First of all, I would like to thank Medicaps University for inviting me in this AIDS awareness program and giving me this opportunity to join hands with all of you and spread awareness for AIDS, HIV. So let us start with the presentation. So I believe most of my audience are engineers or the people who are not from medical and dental field. So they might have many questions in their mind. So the first question which arises for many people is the difference between word AIDS and HIV. Is it same or different? So many of you have this question. So it is different. It is not same. The meaning of HIV is human immunodeficiency virus. Human immunodeficiency virus, that means it's the name of a virus. And the meaning of AIDS, it's acquired immunodeficiency syndrome. That means that syndrome is something which is a group of symptoms या बहुत सारे लक्षण अगर एक ही इंसान में नजर आए किसी चीज के तो वो है सिंड्रोम. तो यहाँ पे इस वायरस की वजह से बहुत सारे ऐसे लक्षण किसी में नजर आते हैं तो उसको बोलते हैं एड्स. ओके, सो स्टिल थिंकिंग कि क्या है? तो एड्स जो है वो सिंड्रोम है ग्रुप ऑफ सिम्टम्स का, और यहाँ पे AIDS is a group of illness acquired when the immune system is unable to defend against infection. That means that जब बॉडी की डिफेंस मैकेनिज्म या फिर इंफेक्शन से लड़ने की क्षमता अगर कम होती है तो वहां पे किसी भी, अगर वो HIV से इन्फेक्टेड है तो वहां पे किसी भी पेशेंट को एड्स होगा या उसको एड्स कहेंगे. सो HIV वायरस का नाम है और एड्स उस वायरस से होने वाले अलग अलग तरह के साइंस एंड सिम्टम्स या अलग अलग तरह के लक्षण को कहा जाता है. इस बीमारी में
जो बॉडी का इम्यून सिस्टम होता है या रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो कम हो जाती है, और अल्टीमेटली एचआईवी की वजह से एड्स होता है। सो एचआईवी एक तरह का इन्फेक्टिव वायरस है और एड्स उससे रिलेटेड बीमारी है। तो हमारे दिमाग में अगला क्वेश्चन आएगा कि हाउ, व्हेन, कब हुआ ये, कैसे लोगों को पता पड़ा कि एचआईवी एड्स भी कुछ है। तो करीब 1981 के करीब कुछ ऐसे पेशेंट्स मिले अमेरिका में, लॉस एंजलिस और न्यूयॉर्क में, जब डॉक्टर को थोड़ा शक होने लगा कि ये नॉर्मल बीमारी से कुछ अलग है, या जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स है या और भी जो लक्षण नजर आ रहे थे पेशेंट्स में उनसे कुछ अलग है। तो 1983 में ये डॉक्टर लुक मॉन्टेगियर जो थे, उन्होंने रेट्रोवायरस, जो एचआईवी का वायरस होता है उसको रेट्रोवायरस बोलते हैं, सो ये जो रेट्रोवायरस है इसको इन्होंने आइसोलेट किया, अलग किया एक ऐसे पेशेंट से जिनमें मल्टीपल लिम्फोडेनोपैथी थी, मतलब जो लिम्फ नोड थे उनमें बहुत सारी स्वेलिंग थी, अलग अलग लिम्फ नोड्स जो है वो इन्वॉल्व थे उन पेशेंट्स में, और इस तरह के एक पेशेंट में से इन्होंने वायरस को आइसोलेट किया। फिर 1984 में रॉबर्ट गैलो जो थे उन्होंने रेट्रोवायरस को एक एड्स पेशेंट से आइसोलेट किया। अभी यहाँ डिफरेंस ये था कि वहां पे मल्टीपल लिम्फेडेनोपैथी हो रही थी, मतलब कि लिम्फ नोड्स इनलार्ज हो रहे थे, पर यहाँ पे और भी कई सारे सिम्टम्स थे जो इन्हें दिख रहे थे पेशेंट में। तो 1984 में इन्होंने वहां पे रेट्रोवायरस को आइसोलेट किया और उसको नाम दिया ह्यूमन टी सेल लिम्फोट्रोपिक वायरस। फिर 1986 में इंटरनेशनल कमिटी ऑन वायरस नॉमेनक्लेचर जो है उन्होंने उसको नाम दिया ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। तो हमें एड्स और एचआईवी के बारे में क्या जानकारी होनी चाहिए, हमें क्या क्या नॉलेज होना चाहिए उसके बारे में। और इससे भी बड़ा सवाल हमारे दिमाग में ये कि हमें ये जानना क्यों है कि एचआईवी वायरस इंपॉर्टेंट है या हमारी लाइफ में ये क्या इंपॉर्टेंस रखता है। तो अगर हम ग्लोबल डेटा देखें, अगर हम ऑब्जर्व करें ग्लोबल डेटा को, तो यहाँ पे वर्ल्ड वाइड जो है अराउंड 38 मिलियन लोग जो हैं वो अफेक्टेड हैं, जिसमें इंडिया में ही करीब 2.5 मिलियन लोग अफेक्टेड हैं। दिस इज अराउंड इन 2019। नेक्स्ट, ये जो डेथ्स हो रही हैं एड्स रिलेटेड डेथ्स, ये भी काफी ज्यादा हैं, करीब 60,000 लोग जो हैं वो एड्स रिलेटेड डेथ हुई है उनकी, और वर्ल्ड वाइड तो उसमें कई ज्यादा हैं। हर साल करीब करीब 70,000 लोग, 70,000 लोग जो हैं वो जुड़ जाते हैं इन पेशेंट्स के साथ में जिनके ऑलरेडी एड्स या एचआईवी है, जो एचआईवी से संक्रमित हैं। तो 70,000 लोग और लोग जो हैं वो संक्रमित हो जाते हैं एचआईवी से। Can you all see my slides? Is it moving now? Ma'am, it's visible, but I think you have not a full screen. So please, can you share the full screen of that slides? That slideshow. One second, I'll share it again. Can you see now in full screen? Can you see my slides moving? Yes, yes, yes. Okay, thank you. ओके, सो इंडिया में और वर्ल्ड वाइड भी ये देखा गया है कि जो
HIV इन्फेक्शन के होने का जो ट्रेंड है वो थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है या कम हुआ है? आंकड़े हमें ये बताते हैं कि HIV इन्फेक्शन, क्योंकि लोगों में अवेयरनेस कम थी उस समय, इसलिए आज से कुछ साल पहले तक, 2007 और उसके पहले तक, काफी लोग जो हैं वो नए लोग इन्फेक्ट होते थे, जो प्रिवलेंस था HIV का वो ज्यादा था, बट धीरे 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 कम होता जा रहा है टुवर्ड्स 2021, बिकॉज अवेयरनेस बढ़ती जा रही है। कैन यू, मेरी स्लाइड्स मूव हो रही है? नो? नो मैम, एक्चुअली जो स्लाइड शो है वो एक्चुअली आपका शेयर नहीं हुआ है। जो आपकी स्लाइड्स है वो शेयर हुई है, तो फुल स्क्रीन में जो स्लाइड शो होता है वो शेयर नहीं हो रहा है। Okay, just give me 1 minute. Start video, you will do it. I'm sorry for the interruption. Okay, so यहाँ पे आंकड़े ये दिखाते हैं कि धीरे धीरे, क्योंकि एड्स अवेयरनेस प्रोग्राम्स हो रहे हैं, काफी लोग बहुत शिक्षित हो रहे हैं और इजीली अवेलेबल है हमारे सवालों के जवाब थ्रू गूगल में भी, इसलिए जो नंबर ऑफ पेशेंट्स हैं, नए पेशेंट्स हैं जो इन्फेक्ट हो रहे हैं, वो कम हो रहे हैं कंपैरेटिवली अर्लियर। मध्य प्रदेश में भी सिमिलर सिचुएशन है, जहां पे कि 2005 से अभी तक नंबर ऑफ पेशेंट्स जो हैं वो कम हो रहे हैं या कम रिपोर्ट हो रहे हैं, पॉजिटिविटी कम रिपोर्ट हो रही है। 2021 तक के आंकड़ों को अगर हम देखें 2012 से, so if you try to see from 2012 to 2021, the number of patients have drastically decreased and the improvement is drastic. क्यों? क्योंकि काफी सारे एड्स अवेयरनेस प्रोग्राम्स चल रहे हैं। अकॉर्डिंग टू नाको, अडल्ट में जो प्रिविलेंस है इंडिया और मध्य प्रदेश में अगर हम देखें तो कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है प्रिविलेंस। एंटीनेटल केयर में भी काफी चीजें ठीक हो रही है, और अगर आप ऑब्जर्व करें डेटा को तो एंटीनेटल में भी number of patients acquiring HIV or number of new patients is decreasing.
HIV जो होता है वो ज्यादातर मेल्स में देखा गया है और फीमेल्स में ये थोड़ा कम देखा गया है। ये आंकड़े 2008 से लेके 2017 तक के हैं। तो ज्यादातर मेल्स जो होते हैं वो HIV से इन्फेक्टेड होते हैं, फीमेल्स कंपैरेटिवली कम है नंबर में। ओके, सो ये हमारे रीजन है कि हमें जानना चाहिए HIV के बारे में। सो मे बी इसका इंपॉर्टेंस अब आपको लगे कि यस, हमें हर एक बात HIV के बारे में पता होनी चाहिए। तो HIV बेसिकली 4 मोड ऑफ ट्रांसमिशन होते हैं उसके, टोटल अराउंड 4 मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज अनप्रोटेक्टेड सेक्स विद एन इन्फेक्टेड पार्टनर। अगर आप किसी भी इन्फेक्टेड पार्टनर के साथ में अनप्रोटेक्टेड सेक्स करते हैं या फिर कॉन्डम्स जैसी चीजों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, उस कंडीशन में देयर इज अ हाई चांस कि आप HIV इन्फेक्टेड हो जाएं। दूसरी सबसे बड़ा रीजन वो है कि अगर आप इन्फेक्टेड नीडल्स और सिरिंजेस को शेयर करते हैं किसी और HIV पॉजिटिव इंसान से। नेक्स्ट, HIV जो होता है वो मदर से भी बच्चे में आ सकता है। तो इसके भी कई सारे केसेस हैं और उस पर काफी काम हो रहा है। दूसरा, अगर कोई दूषित खून जो है HIV इन्फेक्टेड पर्सन का अगर आपको लग जाए या किसी पर्सन को लग जाए तो भी आपको HIV हो सकता है। तो बेसिकली जो रिस्क वाली फ्लूइड है बॉडी के वो है ब्लड, सीमन, वेजाइनल सिक्रेशंस, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, साइनोवल फ्लूइड, एमनियोटिक फ्लूइड, जो कि बच्चे मदर से जो बच्चा जो होता है वो बच्चेदानी में होता है, वहां पे जो फ्लूइड होता है उसको एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं, वहां से भी आ सकता है। और दूसरे कंटेमिनेटेड फ्लूइड जो है जो कि ब्लड से कंटेमिनेटेड हुए हैं, ये सारे फ्लूइड जो है रिस्क में हो सकते हैं। पर कहाँ पे इन्फेक्शन नहीं होने की रिस्क है वो है टीयर्स, आंसू, या फिर पसीने से, यूरिन से, या फिर फीसिस से, किसी के सलाइवा से, स्पूटम से, इन सारी चीजों से HIV होने के चांसेस कम है या ना के बराबर है, अनटिल एंड अनलेस ये ब्लड से ब्लड हो उसमें या विजिबल अमाउंट ऑफ ब्लड हो, खून हो उसके अंदर। सो ये देखा गया है कि अगर दूषित खून किसी इंसान को चढ़ाया जाए तो देर इज अ हाई चांस, हाई पॉसिबिलिटी कि उसको भी HIV हो जाए। जबकि अगर कोई HIV पॉजिटिव जो पार्टनर है वो अगर किसी नॉन इन्फेक्टेड पर्सन के साथ में अगर सेक्स करता है तो पर ml में सीमेन में जो होता है सिर्फ 11,000 जो होता है उतना ही वायरल काउंट होता है, जबकि ब्लड में वो कई गुना ज्यादा होता है और बाकी फ्लूइड में भी कम होता है एज कंपेयर टू ब्लड। तो कॉमन मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो होता है इंडिया में स्पेशली वो सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है। और यहाँ पे हम देखें अगर तो करीब करीब 88-89% जो इन्फेक्शन फैलता है HIV में वो इसी की वजह से होता है। और भी मुख्य कारण है पर ये इस चीज में ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं, यहाँ पे ज्यादा इन्फेक्शन फैलने के चांसेस हैं इंडिया में। अगेन 2017 तक के आंकड़े हैं कि सेक्स सबसे ज्यादा जो है वो इन्फेक्शन फैलाता है। अनप्रोटेक्टेड सेक्स कहा जाए तो वो ज्यादा बेहतर होगा। उसके अलावा ब्लड, सिरिंजेस, नीडल्स या फिर मां से बच्चे में, ये सारे भी कारण होते हैं इन्फेक्शन फैलने के। अब हमें ये जानने की जरूरत है कि ऐसी क्या चीज है जिससे कि HIV इन्फेक्शन नहीं होता है। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टचिंग। छुओगे अगर आप किसी इंसान को, HIV इन्फेक्टेड पर्सन को, तो उससे नहीं होगा HIV। किसिंग से नहीं होगा, हगिंग से नहीं होगा, खाना अगर आप साथ में खाते हैं उससे नहीं होगा HIV। कोई इंसेक्ट अगर HIV पर्सन को बाइट कर ले और फिर वो आपको कर ले तो ऐसा, इससे इन्फेक्शन नहीं होता है HIV का। अगर आप सेम कॉमन टॉयलेट सीट्स यूज करते हैं तो भी इन्फेक्शन नहीं होता है। नहाते हैं साथ में या फिर
कोई आप HIV इन्फेक्टेड पर्सन आपके ऊपर छींक दे तो भी आपको इन्फेक्शन नहीं होंगे, या फिर किसी के पसीने से आप टच हो जाएं तो भी आपको इन्फेक्शन नहीं होगा। तो क्या HIV इन्फेक्शन के और भी कितने तरह का होता है HIV इन्फेक्शन, कौन कौन से टाइप्स होते हैं, ये सवाल कई लोगों के दिमाग में आता है। तो HIV मेनली दो तरह का होता है, HIV-1 और HIV-2 टाइप। HIV-2 मेनली अफ्रीकन कंट्रीज में देखा गया है, और जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में देखा गया है वो है HIV-1 टाइप। तो जब HIV वायरस बॉडी के अंदर अगर गलती से एंटर हो जाता है किसी के, तो एग्जैक्टली बॉडी में होता क्या है। तो मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को इन्फेक्टेड निडल से एक पंचर हो गया या सुई चुभ गई, तो वहां से इन्फेक्शन जो होता है वो स्किन के थ्रू जो है सीधे अंदर जाता है। अंदर स्किन के अंदर एक डिफेंस सेल होता है जिसको कि बोलते हैं डेंड्राइटिक सेल्स। तो ये जो डेंड्राइटिक सेल्स होते हैं, इसके लंबे लंबे प्रोसेसेस होते हैं। इन प्रोसेसेस में ये वायरस जाके अटक जाता है, या फिर ये डेंड्राइटिक सेल्स इन वायरसेस को ले लेता है। यहां से ये वायरस को टी सेल को ट्रांसमिट करता है। टी सेल हमारे इम्यून सेल्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी में इम्यूनिटी बनाते हैं। तो ये जो टी सेल्स हैं, इनको डेंड्राइटिक सेल्स ये वायरस देता है। उसके बाद में ये वायरस टी सेल्स के अंदर एंटर कर जाता है, रेप्लिकेट करता है, मतलब कि मल्टीप्लाई करता है, और फिर अल्टीमेटली टी सेल को पूरा डिस्ट्रॉय कर देता है, और इस तरह वायरस मल्टीप्लाई होके पूरे शरीर में फैल जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर वायरस बॉडी में एंटर हो गया और डेंड्राइटिक सेल के जो डेंड्राइटिक प्रोसेसेस है वहां पे वायरस जो है आके डेंड्राइटिक सेल ने उसको ले लिया, पर अगर ये डेंड्राइटिक सेल किसी भी टी सेल को अगर वायरस नहीं देते हैं, तो यहाँ पे हमें एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि बाय चांस हमें कहीं से कोई इन्फेक्शन लगने के चांस है या कोई निडल चुभ जाता है, तो यहाँ पे हम एक अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं और अपने आप को बचा सकते हैं HIV से। किस तरह हम बचाएंगे वो, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस फॉर HIV और एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी ड्रग्स। यहाँ पे जो है हम इस तरह कुछ मेडिसिन होती हैं जो कि ली जा सकती हैं इनिशियल कुछ टाइम के लिए। इन मेडिसिन को हम अगर ले लेते हैं तो हम काफी हद तक अपने आप को HIV से बचा सकते हैं। तो आपने अपने आप को बचा लिया, आपने अनप्रोटेक्टेड सेक्स नहीं किया, मदर से चाइल्ड में भी आपने सेवरल टेस्ट करवा लिए और इन्फेक्शन नहीं फैलने दिया, या फिर आपने खून चढ़ाने के पहले उस खून का जांच करवा ली और इन्फेक्टेड या दूषित खून आपके अंदर नहीं चढ़ा, पर बाय चांस इट इज पॉसिबल कि किसी ना किसी को निडल से कुछ लग जाए, या कहीं आप, देयर आर मेनी केसेस जो आपने देखा है थिएटर में किसी ने सुई चुभा दी या कहीं और ऐसा कुछ एक्सीडेंट हो गया। उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? इस तरह का एक्सीडेंट अगर आपके साथ कहीं किसी के साथ हो जाता है तो उस कंडीशन में आप क्या करना चाहिए आपको? तो सबसे बड़ी चीज जो है जो आपको ध्यान में रखना है वो ये है कि आपको पैनिक बिल्कुल भी नहीं करना है। जो फिंगर या जो कट एरिया है, उस कट एरिया में आप कभी भी उसको मुंह में ना लें। जैसे कि अगर फिंगर में कट हो जाए उसको मुंह में ना लें। जो भी जहां भी कट एरिया होता है तो यूजुअली आप, इंस्टिंक्ट ऐसा होता है कि आप मुंह में ले लेते हैं, तो उसको ऐसा ना करें। जो HIV की थेरेपी होती है
वो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी शुरू हो जाए। कब तक आप शुरू कर सकते हैं? जब तक कि इम्यूनोलॉजिकल प्रॉब्लम या इम्यून डैमेज ना हो। कैन एनी वन ऑफ यू टेल मी दैट इज माई स्लाइड्स मूविंग एंड एम आई ऑडिबल? ओके, थैंक यू, थैंक यू। ओके, सो हम अगर उस स्टेज पे हों अभी कि हमें अचानक से कहीं से निडल चुभ गई है और हमें पूरा पूरा शक है कि देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि ये जो निडल है ये एचआईवी इन्फेक्टेड है, या फिर आप अनप्रोटेक्टेड सेक्स किसी के साथ कर लेते हैं जहां पे आपको रियलाइज होता है कि जो आपका पार्टनर था वो एचआईवी पॉजिटिव था, उस कंडीशन में आपको इमीडिएटली एक डॉक्टर से मिलना चाहिए, इसके पहले कि और ज्यादा इम्यूनोलॉजिकल डैमेज हो आपकी बॉडी में या फिर आपके बॉडी का डिफेंस सिस्टम कम हो। तो इसी अपॉर्चुनिटी को आपको यूज करना है और आपको एक डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो सबसे पहले जो चीजें हैं हमें ध्यान में रखना चाहिए वो डेट और टाइम ऑफ एक्सपोजर है कि आपको इस तरह के एक्सीडेंट आपके साथ में कब हुआ, डिटेल क्या है उस एक्सीडेंट का, किस तरह का एक्सीडेंट हुआ, वेदर कोई नीडल चुभ गई या कहीं दूषित खून चढ़ गया या फिर अनप्रोटेक्टेड सेक्स किसी के साथ किया, तो इसका डेट और टाइम ऑफ एक्सपोजर आपको पता होना चाहिए। अगर हाथ में या किसी बॉडी पार्ट पे कहीं कुछ लग जाता है तो सबसे पहले जो होता है वो आपको अपने हाथ को धोना चाहिए, एंटीसेप्टिक लगाना चाहिए। अगर आंख में कभी दूषित खून या कुछ चला जाए तो आपको आंखों को इमीडिएटली फ्लश करना चाहिए। और सबसे ज्यादा जरूरी बात, जितना जल्दी हो सके एक फिजिशियन से कंसल्ट करना चाहिए। आपके नियर बाय किसी भी फिजिशियन से या गवर्नमेंट फिजिशियन से आपको कंसल्ट करना चाहिए। तो फिजिशियन आपको देयर इज समथिंग कॉल्ड एज पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस फॉर एचआईवी, वो शुरू कर देगा और आप कुछ हद तक या फिर काफी हद तक एचआईवी इन्फेक्टेड होने से बच सकते हैं। तो अगर आप 1 या 2 घंटे में ही रिपोर्ट कर देते हैं डॉक्टर को तो बहुत हाई चांस है कि आप ठीक हो जाएं या आपको किसी तरह का कोई इन्फेक्शन ना लगे। कुछ कुछ स्टडीज जो है वो ये भी कहती है कि 24 घंटे के पहले पहले अगर आप शुरू कर देते हैं अपना ट्रीटमेंट तो आप इन्फेक्टेड नहीं होते हैं। कुछ कुछ स्टडीज ये भी कहती है कि 36 आवर्स तक आप वो ले सकते हैं, बट 2 to 8 आवर्स इज द आइडियल वन। 2 से 8 घंटे के पहले ही आपको डॉक्टर से मिल लेना चाहिए अगर ऐसी कोई दिक्कत होती है तो हमने सारी चीजें जान ली। एचआईवी क्या होता है, एचआईवी और एड्स के बारे में उनका डिफरेंस क्या होता है, या फिर हमने ये भी देख लिया क्यों होता है, कैसे होता है, किस चीज से नहीं होता है। अगर बाय चांस कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो हम उसको कैसे अपने आप को बचाया जा सकता है। फिर भी वाई पीपल डोंट वांट टू टॉक और रिपोर्ट टू अ डॉक्टर अबाउट द एक्सपोजर, क्यों हम बात नहीं करना चाहते हैं इसके बारे में, क्यों हम चुप रहते हैं, हम इग्नोर करते रहते हैं, फिर बाद में हम डरते भी रहते हैं। इसका मेजर एक कारण हो सकता है कि स्टिग्मा है, सोशल स्टिग्मा है और डिस्क्रिमिनेशन है एचआईवी इन्फेक्टेड लोगों के साथ हमारी सोसाइटी में। तो अगर एक हेल्दी सोसाइटी चाहिए, हमें एक हेल्दी लाइफ चाहिए, हेल्दी रिलेशनशिप्स चाहिए, तो हमें सबसे पहले जो है सोशल स्टिग्मा जो है उसको रोकना होगा। तो हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए कि हमें एचआईवी एड्स हो ही ना। सबसे पहले यू शुड फॉलो safe sex practice and use condoms. You should be always faithful to your partner. When there is a need to use syringes and needles, तो हमेशा आप disposable syringes और needles को use करें। जब भी
कोई डोनर ब्लड डोनेट करता है या फिर कोई रिसिपिएंट ब्लड रिसीव करता है, तो सबसे पहले एचआईवी का टेस्ट करवा लिया जाए। और बिफोर एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी होने के पहले जब आप प्लान कर रहे हैं, और ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी ऑल्सो, आपको हमेशा एचआईवी टेस्टिंग करवानी चाहिए। टेक होम मैसेज ये है कि एचआईवी जो है ये हमारे इम्यून सिस्टम को बिल्कुल वीक कर देता है, इन्फेक्शन से लड़ने की क्षमता को कम कर देता है। तो जो सबसे रिलायबल मेथड है एचआईवी इन्फेक्शन को अवॉइड करने के लिए, वो प्रिकॉशंस ही हैं। और इन्फेक्टेड पर्सन से कांटेक्ट ना हो, वायरस से कांटेक्ट ना हो, ये सबसे बेटर तरीका है। हालांकि पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस जो मेडिसिन है वो ली जा सकती है, पर वो तभी ज्यादा कारगर है अगर आप जल्दी से रिपोर्ट करें, डॉक्टर को जल्दी से बता दें कि इस तरह का कोई एक्सपोजर हुआ है, और आप जल्दी से जल्दी अपना ट्रीटमेंट शुरू कर दें, पॉसिबली 2 से 8 घंटे के पहले ही। अगर कोई इस तरह की घटना होती है कि आप इन्फेक्ट हो गए हैं या कोई एक्सीडेंट हो गया है आपका, तो आप पैनिक ना करें, सीधे अपने डॉक्टर से बात करें। और सोशल स्टिग्मा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, अगर हम सोशल स्टिग्मा को ही मिटा दें एचआईवी एड्स को लेके, तो एचआईवी एड्स अभी स्टडीज, रीसेंट स्टडीज ये कहती हैं कि एक इंसान जो एचआईवी पॉजिटिव है वो बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान की जिंदगी बिता सकता है अगर वो टाइमली मेडिकेशन ले ले और टाइमली अपना ट्रीटमेंट करवाएं। तो अगर हम इस सोशल स्टिग्मा को मिटा देते हैं पूरी तरीके से, तो ये जैसे बीपी और शुगर को हमने एक्सेप्ट किया है अपनी सोसाइटी में, अगर हम इसी तरह एचआईवी को भी एक्सेप्ट कर लें तो काफी दिक्कतें कम हो सकती है, काफी लोगों की जान बच सकती है, काफी लोग अपनी बीमारी को लेके सामने आ सकते हैं और अपने प्रॉब्लम्स बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और उनका प्रॉपर तरीके से इलाज हो सकता है जितना जल्दी हो सके। तो सबसे लास्ट में मैं यही आप कंक्लूड करना चाहूंगी कि योर पेशेंस एंड नॉलेज अबाउट द HIV and AIDS is very important, and that may be the best way to protect yourself. So let us all join hands and spread awareness about HIV AIDS. A tribute to Prashant sir. Let us all spread awareness about HIV AIDS. And I request all of you to wear mask ताकि इस तरह की situations वापस ना आए। Thank you. अगर आपको still doubts हैं, you can ask me a question. स्टिल आपको अगर कोई डाउट रहता है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और अपने सारे डाउट्स जो है वो क्लियर कर सकते हैं। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू नोट डाउन द नंबर। थैंक यू। Yes, if you have any doubt, you can ask ma'am. You can raise your hand. Yes, Ishan, let me know. Ma'am, when someone is infected with the virus, Okay. it replicates itself when it's passed from one person to another. So will we see any vaccines in future? Yes, people are working on vaccines, but then since it is a virus and it has a mechanism to replicate inside the CD4 cells, so yes, there is a possibility to have a vaccine in future, but this is taking time. So the best way now is to protect yourself from getting infected. Yes, Adesh. Good morning, ma'am. Ma'am, my morning. question is
is it always the case that a person having HIV will have AIDS too? No, no. A person who is having HIV will have AIDS if the person is not taking proper medication, and in later stage of development, maybe 6 to 10 years, after 6 to 10 years, they might develop this group of syndrome or group of symptoms, and then they develop AIDS. But if a person is having AIDS, they definitely have HIV. But the vice versa is not true. अगर HIV है तो जरूरी नहीं उसको AIDS हो, क्योंकि वो प्रॉपर मेडिकेशन ले रहा है, प्रॉपर ट्रीटमेंट ले रहा है, तो वो एक नॉर्मल जिंदगी जी सकता है. Anyone else? Yes, Tania? Jai Hind ma'am, Tanya Setia this side. I Yes. just want to ask, do HIV symptoms are same in men and women? Yes, most of the symptoms are same in men and women, but there are few symptoms which is exclusively different. But yes, I believe most of the symptoms at your level, for a layman, it is more or less same. Anyone else? Please fill the feedback form which is there in the chat box in order to give the certificates. And yes, of course, any more questions, please? Okay, I think we don't have questions now. So my name is Hitesh Kar. So I'm here to present the vote of thanks. Uh, uh, this was such a wonderful, informative session by Dr. Madhvi Patidar ma'am. So I would like to thank our speaker, Dr. Madhvi Patidar ma'am, for presenting such an informative webinar in front of us. And I will also thank the DAFCO team, that is the District AIDS Prevention and Control Unit team, Lakranjan sir, Mayank Agrawal sir, Disha ma'am, and I would also like to thank our Honorable Chancellor sir, Honorable VC sir, for their support in arranging this webinar. And finally, uh, I would like to thank our program officer NSS, Vijay Joshi sir, and of course NSS volunteers, which are really helpful in arranging this program successful. So once again, I would like to thank Madhvi ma'am for taking out their time from this busy schedule and awakening us with the share of their knowledge. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you. Jai Hind. Jai Hind. Please fill this feedback form. I think everybody has filled the feedback form, and then we will end the meeting after 2 minutes. Thank you, ma'am. Okay, thank you so much for listening us. Thank you.